Hello class 9th, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing well. चलिए हम आगे पढ़ेंगे इन दिस क्लास मोमेंट्स में द एडवेंचर ऑफ टोटो में। यहाँ से पढ़ना है अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज bowl of warm water given him by grandmother for his bath, है ना। uh, he would cunningly test the temperature with his hands, then gradually step into the bath, first on one foot, then the other, as the had seen me doing, until he was into the water up to his neck, है ना। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. क्या हो रहा था कि a great deal for Toto, sorry, सर्दी के मौसम में सायकाल के समय टोटो की एक बड़ी खातिर यह होती थी कि दादाजी उसे एक बड़े से बर्तन में नहाने को गर्म पानी देती थी। दादी जी वो बड़ी चतुराई से अपना हाथ डालकर देखता था कि पानी कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे वह उसमें प्रवेश करता था। पहले एक गांव, फिर दूसरा, और और पहले एक पाँव, फिर दूसरा, और फिर गर्दन एक तक पानी में बैठ जाता था। वो मुझे ऐसा करते देखा करता था, फिर आराम से बैठकर अपने हाथों या पाँव में साबुन पकड़कर मलता था। जब पानी ठंडा हो जाता था तब वो पानी से बाहर निकलकर दौड़ कर रसोई में चूल्हे के सामने सुखाने के लिए बैठ जाता था। यदि यदि कोई उसे ऐसा करते देखकर हंस पड़ता तो टोटो नहाना बंद कर देता था। एक दिन टोटो जीवित ही उबलने वाला था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid, finding the water just warm enough for a bath. He got in with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. है ना, sat down again. उसके बाद क्या कहता है कि he continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, ठीक है, half boiled out of the kettle. एक बड़ी केतली वाला जो होता है ना, केतली, एक बड़ी केतली में चाय व टोटो के लिए नहाने का पानी आग पर उबालने के लिए रखा था। खाली बैठे टोटो ने केतली का ढक्कन हटा दिया। पानी नहाने के लिए ठीक गर्म था। वो उसमें चला गया और सिर को केतली के मुंह में से निकाले रखा। कुछ देर तक उसे अच्छा लगा, किंतु पानी उबलने लगा। टोटो थोड़ा ऊपर उठा और बाहर ठंड थी। वो फिर केतली में बैठ गया। कुछ समय तक वह उस उठ बैठ करता था। अंत में दादी जी ने उसे आधे उबले को केतली से बाहर निकाला। ठीक है, उबलने ही वाला था। इफ, अब यहाँ से पढ़ेंगे इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द, है ना, तो इफ देर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीव, दैट part was largely developed in Toto. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made everything effort to get hold of her dress and tear a hole in it. है ना, यह यदि दिमाग का कोई हिस्सा शरारतें करने के लिए बना है तो वह भाग टोटो में काफ़ी ज़्यादा विकसित था। वह सदा चीर फाड़ करता था,
जब मेरी कोई बुआ उसके पास आती तो वह उसकी ड्रेस पकड़कर उसमें एक छेद करने की पूरी कोशिश करता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वन डे एट लंच टाइम। यहाँ से वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto suffering center of the dining table. Uh, we entered the room to find Toto suffering himself with rice. My grandmother screamed, and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. है ना, कह रहे कि एक दिन दोपहर के खाने के समय खाने की मेज पर पुलाव की एक बड़ी प्लेट रखी थी। कमरे में प्रवेश करते हुए हमने देखा कि टोटो चावल अपने मुंह में ठूंस रहा था। मेरी दादी जी चिल्लाईं। टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक कर मारी। जब मेरी बुआ आगे बढ़ी तो उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंका। जब दादाजी आए तो टोटो पुलाव की प्लेट लेकर खिड़की से बाहर भाग गया। वो प्लेट समेत जैकफ्रूट यानी कि जो कटहल के पेड़ की टहनियों पर जाकर बैठ गया। सारा दिन वहीं रहा। वह चावल का एक एक दाना खाने पर तुला हुआ था और फिर दादी जी चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट पेड़ से नीचे फेंक दी और प्लेट के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर वह खुशी से चेंचे करने लगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains, and wallpapers. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. तो स्पष्टतः टोटो ऐसा पालतू पशु न था जिसे हम ज़्यादा समय तक रख सकें। दादाजी ने भी महसूस किया कि हम इतने धनी नहीं हैं कि बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों और दीवार के कागज़ के फाड़ जाने की क्षति सहन कर सकें। इसलिए दादाजी ने तांगे वाले को केवल 3 रुपये में टोटो को बेच दिया। ठीक है, यह रस्किन बॉन्ड की कहानी थी, है ना। ठीक है बच्चों, ये रस्किन बॉन्ड की कहानी थी। आगे जो है हम एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो टर्नस्टाइल का मतलब पहले समझ लेते हैं। यहाँ क्या कहता है। टर्नस्टाइल, अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ revolving horizontal arms fixed to a vertical post allowing only one person at a time to pass through. है ना, क्लियर है। halter मीन्स क्या होता है, अ रोप और a strap placed around the head of a horse or other animals used for leading or tethering it. है ना, halter मीन्स होता है एक लगाम टाइप का। ठीक है, और टर्नस्टाइल मतलब एक मैकेनिकल गेट होता है जो कि हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड होते हैं उसमें। आप देखे होंगे स्टेशन वगैरह पे अक्सर, उसको टर्नस्टाइल कहते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइजेस. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.